بہتر ہوگا کہ ہم دوبارہ اس ٹاپک پہ بات نہ کریں. ہر عورت بکاؤ نہیں ہوتی. نکاح کرو گی مجھ سے؟ اور ہم آج سے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے. یہ سارے ڈر اور خوف اپنے ذہن سے نکال کے پھینک دو. یہ ہاتھ میں ساری عمر کے لیے تھاما ہے. تم اس بات کی تسلی کر لو، میں تمہیں کبھی خالی نہیں ہونے دوں گا. باپ دادا کی عزت کا خیال نہیں کیا اس نے، دل پار کر گئی. ایسی اولاد کو میں گھر میں نہیں رکھ سکتا. ہم بھی تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن وہ میرا رب ہمارے ظاہری پوشیدہ گناہوں کو معاف کر کے ہر روز صبح وہ اپنے فرشتوں سے ہمیں رزق بھیجتا ہے. اس سب میں میری تو کوئی غلطی نہیں، میرا کوئی قصور نہیں. مجھے کس بات کی سزا دے؟ نہیں، قصور میرا ہے. قصور میرا ہے کہ ایسے خاندان میں میری شادی ہو گئی. دعا کا تو ابھی تک جرم بھی ثابت نہیں ہوا ہے. میرا یقین کرے، میں اپنی بہن کو جانتی ہوں، وہ نہیں ہے ایسی. بس کر دو. نہیں مانتی تو مناؤ نا. ان لڑکیوں کے کہنے اور مرضی پہ چلیں گے تو بھوکے مر جائیں گے. ڈھیٹ ہے، تھوڑا وقت لگے گا. وقت ہی تو نہیں ہے. ہر کسی کو نئے چہروں. گھر سے نکالے جانے کے بعد تو آج زنیرہ سے ملی اور زنیرہ نے اسے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہا، لیکن ابھی تک تو کی مزاحمت جاری ہے. زنیرہ کے ساتھ میری ملاقات طے کرو. آپ وہاں جائیں گے؟ تو آج دعا ہمارے ساتھ مہمان ہے اور کل صبح جہاں دل چاہے اپنی مرضی سے جا سکتی ہیں. تم نے کھانا کھایا؟ ارے کہاں سے کھائے گی بھلا؟ راستے میں بھی کوئی کھانے دیتا ہے کیا؟ اچھا سنو رومی بیٹا، ملازم سے کہو کہ دعا کسی دعا کا نام لے رہے تھے آپ. کون ہے؟ میں اس دنیا میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں. اگر میں بیوی ہوں آپ کی. جعفر آخر کار دعا کو ڈھونڈ لیتا ہے. جب جعفر اپنے گھر واپس آ جاتا ہے تو نوشیرہ سے کہتا ہے کہ دعا مل گئی. تو نوشیرہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ وہ ضرور ملے گی. جعفر سے کہتی ہے کہ مجھے بتاؤ وہ کیسی ہے. تو جعفر اسے کہتا ہے کہ وہ لڑکی آپ کے قابل نہیں ہے، کہ میں جو کچھ دیکھنے آیا ہوں تو شاید آپ کی پریتاؤ سے زمین نکل جائے. تو نوشیرہ اسے کہتا ہے کہ سوچ سمجھ کر بات کرو، اور یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ میری محبت ہے اور تم وہ کہہ رہے ہو کہ وہ مجھے قابل نہیں ہے. اور بات کچھ بھی ہو، لیکن کبھی بھی دعا کے بارے میں ایسے الفاظ مت نکالنا. اور جعفر میں بھول جاؤں گا کہ ہماری دوستی کتنی پرانی ہے. تو جعفر کہتا ہے کہ میں تم کو دکھ نہیں دینا چاہتا، لیکن آپ کو بتانا میرا فرض ہے. لیکن آپ کو خود اس پارٹی میں جانا ہوگا، اور جب تم اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کو بھی یقین ہو جائے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ. تو نوشیرہ جواب میں کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، اور دعا ایک عزت دار خانے سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ ایک عزت والی لڑکی ہے کہ جس طرح گارڈز کے ٹکرانے پر اس نے شور مچایا تھا، یہاں تک کہ تب مارنے کے لیے بھی تیار تھی. پھر ایسے کیسے ہوتا ہے کہ وہ اس پارٹی کو جوائن کرے؟ اور جعفر تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے اور مجھے اس پارٹی میں لے کر جاؤ. تو نوشیرہ گارڈ کے ساتھ چلا جاتا ہے. جعفر آخر کار دعا کو ڈھونڈ لیتا ہے. جب جعفر اپنے گھر واپس آ جاتا ہے تو نوشیرہ سے کہتا ہے کہ دعا مل گئی. تو نوشیرہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ وہ ضرور ملے گی. جعفر سے کہتی ہے کہ مجھے بتاؤ وہ کیسی ہے. تو جعفر اسے کہتا ہے کہ وہ لڑکی آپ کے قابل نہیں ہے، کہ میں جو کچھ دیکھنے آیا ہوں تو شاید آپ کی پریتاؤ سے زمین نکل جائے. تو نوشیرہ اسے کہتا ہے کہ سوچ سمجھ کر بات کرو، اور یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ میری محبت ہے اور تم وہ کہہ رہے ہو
हो कि वो मुझे काबिल नहीं है, और बात कुछ भी हो लेकिन कभी भी दुआ के बारे में ऐसे अल्फाज मत निकालना। और जाफर मैं भूल जाऊंगा कि हमारी दोस्ती कितनी पुरानी है। तो जाफर कहता है कि मैं तुमको दुख नहीं देना चाहता, लेकिन आपको बताना मेरा फर्ज है, लेकिन आपको खुद इस पार्टी में जाना होगा, और जब तुम अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। तो नौशेरा जवाब में कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और दुआ एक इज्जतदार खाने से ताल्लुक रखती है, और वो एक इज्जत वाली लड़की है कि जिस तरह गार्ड्स के टकराने पर उसने शोर मचाया था, यहाँ तक कि थप्पड़ मारने के लिए भी तैयार थी। फिर ऐसे कैसे होता है कि वो इस पार्टी को ज्वाइन करे, और जाफर तुम्हें गलतफहमी हुई है और मुझे इस पार्टी में लेकर जाओ। तो नौशेरा गार्ड के साथ चला जाता है। जाफर आखिरकार दुआ को ढूंढ लेता है। जब जाफर अपने घर वापस आ जाता है तो नौशेरा से कहता है कि दुआ मिल गई। तो नौशेरा कहता है कि मुझे मालूम था कि वो जरूर मिलेगी। जाफर से कहती है कि मुझे बताओ वो कैसी है। तो जाफर उसे कहता है कि वो लड़की आपके काबिल नहीं है, कि मैं जो कुछ देखने आया हूँ तो शायद आपकी परिताव से जमीन निकल जाए। तो नौशेरा उसे कहता है कि सोच समझ कर बात करो, और ये तुम क्या कह रही हो, वो मेरी मोहब्बत है, और तुम वो कह रहे हो कि वो मुझे काबिल नहीं है, और बात कुछ भी हो लेकिन कभी भी दुआ के बारे में ऐसे अल्फाज मत निकालना। और जाफर मैं भूल जाऊंगा कि हमारी दोस्ती कितनी पुरानी है। तो जाफर कहता है कि मैं तुमको दुख नहीं देना चाहता, लेकिन आपको बताना मेरा फर्ज है, लेकिन आपको खुद इस पार्टी में जाना होगा, और जब तुम अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। तो नौशेरा जवाब में कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और दुआ एक इज्जतदार खाने से ताल्लुक रखती है, और वो एक इज्जत वाली लड़की है कि जिस तरह गार्ड्स के टकराने पर उसने शोर मचाया था, यहाँ तक कि थप्पड़ मारने के लिए भी तैयार थी। फिर ऐसे कैसे होता है कि वो इस पार्टी को ज्वाइन करे, और जाफर तुम्हें गलतफहमी हुई है और मुझे इस पार्टी में लेकर जाओ। तो नौशेरा गार्ड के साथ चला जाता है। जाफर आखिरकार दुआ को ढूंढ लेता है। जब जाफर अपने घर वापस आ जाता है तो नौशेरा से कहता है कि दुआ मिल गई। तो नौशेरा कहता है कि मुझे मालूम था कि वो जरूर मिलेगी। जाफर से कहती है कि मुझे बताओ वो कैसी है। तो जाफर उसे कहता है कि वो लड़की आपके काबिल नहीं है, कि मैं जो कुछ देखने आया हूँ तो शायद आपके परिताव से जमीन निकल जाए। तो नौशेरा उसे कहता है कि सोच समझ कर बात करो, और ये तुम क्या कह रही हो, वो मेरी मोहब्बत है, और तुम वो कह रहे हो कि वो मुझे काबिल नहीं है, और बात कुछ भी हो लेकिन कभी भी दुआ के बारे में ऐसे अल्फाज मत निकालना। और जाफर मैं भूल जाऊंगा कि हमारी दोस्ती कितनी पुरानी है। तो जाफर कहता है कि मैं तुमको दुख नहीं देना चाहता, लेकिन आपको बताना मेरा फर्ज है, लेकिन आपको खुद इस पार्टी में जाना होगा, और जब तुम अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। तो नौशेरा जवाब में कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और दुआ एक इज्जतदार खाने से ताल्लुक रखती है, और वो एक इज्जत वाली लड़की है कि जिस तरह गार्ड्स के टकराने पर उसने शोर मचाया था, यहाँ तक कि थप्पड़ मारने के लिए भी तैयार थी। फिर ऐसे कैसे होता है कि वो इस पार्टी को ज्वाइन करे, और जाफर तुम्हें गलतफहमी हुई है और मुझे इस पार्टी में लेकर जाओ। तो नौशेरा गार्ड के साथ चला जाता है। जाफर आखिरकार दुआ को ढूंढ लेता है। जब जाफर अपने घर वापस आ जाता है तो नौशेरा से कहता है कि दुआ मिल गई। तो नौशेरा कहता है कि मुझे मालूम था कि वो जरूर मिलेगी। जाफर से कहती है कि मुझे बताओ वो कैसी है। तो जाफर उसे कहता है कि वो लड़की आपके काबिल नहीं है, कि मैं जो कुछ देखने आया हूँ तो शायद आपके परिताव से जमीन निकल जाए। तो नौशेरा उसे कहता है कि सोच समझ कर बात करो, और ये तुम क्या कह रही हो, वो मेरी मोहब्बत है, और तुम वो कह रहे हो कि वो मुझे काबिल नहीं है, और बात कुछ भी हो लेकिन कभी भी दुआ के बारे में ऐसे अल्फाज मत निकालना। और जाफर मैं भूल जाऊंगा कि हमारी दोस्ती कितनी पुरानी है। तो जाफर कहता है कि मैं तुमको दुख नहीं देना चाहता, लेकिन आपको बताना मेरा फर्ज है, लेकिन आपको खुद इस पार्टी में जाना होगा, और जब तुम अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। तो नौशेरा जवाब में कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और दुआ एक इज्जतदार खाने से ताल्लुक रखती है, और वो एक इज्जत वाली लड़की है कि जिस तरह गार्ड्स के टकराने पर उसने शोर मचाया था, यहाँ तक कि थप्पड़ मारने के लिए भी तैयार थी।
फिर ऐसे कैसे होता है कि वो इस पार्टी को ज्वाइन करे और जाफर तुम्हें गलतफहमी हुई है और मुझे इस पार्टी में लेकर जाओ। तो नौशेरा गार्ड के साथ चला जाता है। जाफर आखिरकार दुआ को ढूंढ लेता है। जब जाफर अपने घर वापस आ जाता है तो नौशेरा से कहता है कि दुआ मिल गई। तो नौशेरा कहता है कि मुझे मालूम था कि वो जरूर मिलेगी। जाफर से कहती है कि मुझे बताओ वो कैसी है। तो जाफर उसे कहता है कि वो लड़की आपके काबिल नहीं है, कि मैं जो कुछ देखने आया हूँ तो शायद आपकी परिताव से जमीन निकल जाए। तो नौशेरा उसे कहता है कि सोच समझ कर बात करो और ये तुम क्या कह रही हो, वो मेरी मोहब्बत है और तुम वो कह रहे हो कि वो मुझे काबिल नहीं है। और बात कुछ भी हो लेकिन कभी भी दुआ के बारे में ऐसे अल्फाज मत निकालना और जाफर मैं भूल जाऊंगा कि हमारी दोस्ती कितनी पुरानी है। तो जाफर कहता है कि मैं तुमको दुख नहीं देना चाहता लेकिन आपको बताना मेरा फर्ज है, लेकिन आपको खुद इस पार्टी में जाना होगा और जब तुम अपने आंखों से देखेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। तो नौशेरा जवाब में कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता और दुआ एक इज्जतदार खाने से ताल्लुक रखती है और वो एक इज्जत वाली लड़की है कि जिस तरह गार्ड्स के टकराने पर उसने शोर मचाया था, यहाँ तक कि थप्पड़ मारने के लिए भी तैयार थी। फिर ऐसे कैसे होता है कि वो इस पार्टी को ज्वाइन करे और जाफर तुम्हें गलतफहमी हुई है और मुझे इस पार्टी में लेकर जाओ। तो नौशेरा गार्ड के साथ चला जाता है। जाफर आखिरकार दुआ को ढूंढ लेता है। जब जाफर अपने घर वापस आ जाता है तो नौशेरा से कहता है कि दुआ मिल गई। तो नौशेरा कहता है कि मुझे मालूम था कि वो जरूर मिलेगी। जाफर से कहती है कि मुझे बताओ वो कैसी है। तो जाफर उसे कहता है कि वो लड़की आपके काबिल नहीं है, कि मैं जो कुछ देखने आया हूँ तो शायद आपकी परिताव से जमीन निकल जाए। तो नौशेरा उसे कहता है कि सोच समझ कर बात करो और ये तुम क्या कह रही हो, वो मेरी मोहब्बत है और तुम वो कह रहे हो कि वो मुझे काबिल नहीं है। और बात कुछ भी हो लेकिन कभी भी दुआ के बारे में ऐसे अल्फाज मत निकालना और जाफर मैं भूल जाऊंगा कि हमारी दोस्ती कितनी पुरानी है। तो जाफर कहता है कि मैं तुमको दुख नहीं देना चाहता लेकिन आपको बताना मेरा फर्ज है, लेकिन आपको खुद इस पार्टी में जाना होगा और जब तुम अपने आंखों से देखेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। तो नौशेरा जवाब में कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता और दुआ एक इज्जतदार खाने से ताल्लुक रखती है और वो एक इज्जत वाली लड़की है कि जिस तरह गार्ड्स के टकराने पर उसने शोर मचाया था, यहाँ तक कि थप्पड़ मारने के लिए भी तैयार थी। फिर ऐसे कैसे होता है कि वो इस पार्टी को ज्वाइन करे और जाफर तुम्हें गलतफहमी हुई है और मुझे इस पार्टी में लेकर जाओ। तो नौशेरा गार्ड के साथ चला जाता है। जाफर आखिरकार दुआ को ढूंढ लेता है। जब जाफर अपने घर वापस आ जाता है तो नौशेरा से कहता है कि दुआ मिल गई। तो नौशेरा कहता है कि मुझे मालूम था कि वो जरूर मिलेगी। जाफर से कहती है कि मुझे बताओ वो कैसी है। तो जाफर उसे कहता है कि वो लड़की आपके काबिल नहीं है, कि मैं जो कुछ देखने आया हूँ तो शायद आपकी परिताव से जमीन निकल जाए। तो नौशेरा उसे कहता है कि सोच समझ कर बात करो और ये तुम क्या कह रही हो, वो मेरी मोहब्बत है और तुम वो कह रहे हो कि वो मुझे काबिल नहीं है। और बात कुछ भी हो लेकिन कभी भी दुआ के बारे में ऐसे अल्फाज मत निकालना और जाफर मैं भूल जाऊंगा कि हमारी दोस्ती कितनी पुरानी है। तो जाफर कहता है कि मैं तुमको दुख नहीं देना चाहता लेकिन आपको बताना मेरा फर्ज है, लेकिन आपको खुद इस पार्टी में जाना होगा और जब तुम अपने आंखों से देखेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। तो नौशेरा जवाब में कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता और दुआ एक इज्जतदार खाने से ताल्लुक रखती है और वो एक इज्जत वाली लड़की है कि जिस तरह गार्ड्स के टकराने पर उसने शोर मचाया था, यहाँ तक कि थप्पड़ मारने के लिए भी तैयार थी। फिर ऐसे कैसे होता है कि वो इस पार्टी को ज्वाइन करे और जाफर तुम्हें गलतफहमी हुई है और मुझे इस पार्टी में लेकर जाओ। तो नौशेरा गार्ड के साथ चला जाता है। जाफर आखिरकार दुआ को ढूंढ लेता है। जब जाफर अपने घर वापस आ जाता है तो नौशेरा से कहता है कि दुआ मिल गई। तो नौशेरा कहता है कि मुझे मालूम था कि वो जरूर मिलेगी। जाफर से कहती है कि मुझे बताओ वो कैसी है। तो जाफर उसे कहता है कि वो लड़की आपके काबिल नहीं है, कि मैं जो कुछ देखने आया हूँ तो शायद आपकी परिताव से जमीन निकल जाए। तो नौशेरा उसे कहता है कि सोच समझ कर बात करो और ये तुम क्या कह रही हो, वो मेरी मोहब्बत है और तुम वो कह रहे हो
हो कि वो मुझे काबिल नहीं है, और बात कुछ भी हो, लेकिन कभी भी दुआ के बारे में ऐसे अल्फाज मत निकालना। और जाफर मैं भूल जाऊंगा कि हमारी दोस्ती कितनी पुरानी है। तो जाफर कहता है कि मैं तुमको दुख नहीं देना चाहता, लेकिन आपको बताना मेरा फर्ज है, लेकिन आपको खुद इस पार्टी में जाना होगा, और जब तुम अपने आंखों से देखेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। तो नौशेरा जवाब में कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और दुआ एक इज्जतदार खाने से ताल्लुक रखती है, और वो एक इज्जत वाली लड़की है कि जिस तरह गार्ड्स के टकराने पर उसने शोर मचाया था, यहाँ तक कि थप्पड़ मारने के लिए भी तैयार थी। फिर ऐसे कैसे होता है कि वो इस पार्टी को ज्वाइन करे, और जाफर तुम्हें गलतफहमी हुई है और मुझे इस पार्टी में लेकर जाओ। तो नौशेरा गार्ड के साथ चला जाता है। जाफर आखिरकार दुआ को ढूंढ लेता है। जब जाफर अपने घर वापस आ जाता है तो नौशेरा से कहता है कि दुआ मिल गई। तो नौशेरा कहता है कि मुझे मालूम था कि वो जरूर मिलेगी। जाफर से कहती है कि मुझे बताओ वो कैसी है। तो जाफर उसे कहता है कि वो लड़की आपके काबिल नहीं है, कि मैं जो कुछ देखने आया हूँ तो शायद आपकी परिताव से जमीन निकल जाए। तो नौशेरा उसे कहता है कि सोच समझ कर बात करो, और ये तुम क्या कह रही हो, वो मेरी मोहब्बत है, और तुम वो कह रहे हो कि वो मुझे काबिल नहीं है। और बात कुछ भी हो, लेकिन कभी भी दुआ के बारे में ऐसे अल्फाज मत निकालना। और जाफर मैं भूल जाऊंगा कि हमारी दोस्ती कितनी पुरानी है। तो जाफर कहता है कि मैं तुमको दुख नहीं देना चाहता, लेकिन आपको बताना मेरा फर्ज है, लेकिन आपको खुद इस पार्टी में जाना होगा, और जब तुम अपने आंखों से देखेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। तो नौशेरा जवाब में कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और दुआ एक इज्जतदार खाने से ताल्लुक रखती है, और वो एक इज्जत वाली लड़की है कि जिस तरह गार्ड्स के टकराने पर उसने शोर मचाया था, यहाँ तक कि थप्पड़ मारने के लिए भी तैयार थी। फिर ऐसे कैसे होता है कि वो इस पार्टी को ज्वाइन करे, और जाफर तुम्हें गलतफहमी हुई है और मुझे इस पार्टी में लेकर जाओ। तो नौशेरा गार्ड के साथ चला जाता है। जाफर आखिरकार दुआ को ढूंढ लेता है। जब जाफर अपने घर वापस आ जाता है तो नौशेरा से कहता है कि दुआ मिल गई। तो नौशेरा कहता है कि मुझे मालूम था कि वो जरूर मिलेगी। जाफर से कहती है कि मुझे बताओ वो कैसी है। तो जाफर उसे कहता है कि वो लड़की आपके काबिल नहीं है, कि मैं जो कुछ देखने आया हूँ तो शायद आपकी परिताव से जमीन निकल जाए। तो नौशेरा उसे कहता है कि सोच समझ कर बात करो, और ये तुम क्या कह रही हो, वो मेरी मोहब्बत है, और तुम वो कह रहे हो कि वो मुझे काबिल नहीं है। और बात कुछ भी हो, लेकिन कभी भी दुआ के बारे में ऐसे अल्फाज मत निकालना। और जाफर मैं भूल जाऊंगा कि हमारी दोस्ती कितनी पुरानी है। तो जाफर कहता है कि मैं तुमको दुख नहीं देना चाहता, लेकिन आपको बताना मेरा फर्ज है, लेकिन आपको खुद इस पार्टी में जाना होगा, और जब तुम अपने आंखों से देखेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। तो नौशेरा जवाब में कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और दुआ एक इज्जतदार खाने से ताल्लुक रखती है, और वो एक इज्जत वाली लड़की है कि जिस तरह गार्ड्स के टकराने पर उसने शोर मचाया था, यहाँ तक कि थप्पड़ मारने के लिए भी तैयार थी। फिर ऐसे कैसे होता है कि वो इस पार्टी को ज्वाइन करे, और जाफर तुम्हें गलतफहमी हुई है और मुझे इस पार्टी में लेकर जाओ। तो नौशेरा गार्ड के साथ चला जाता है। जाफर आखिरकार दुआ को ढूंढ लेता है। जब जाफर अपने घर वापस आ जाता है तो नौशेरा से कहता है कि दुआ मिल गई। तो नौशेरा कहता है कि मुझे मालूम था कि वो जरूर मिलेगी। जाफर से कहती है कि मुझे बताओ वो कैसी है। तो जाफर उसे कहता है कि वो लड़की आपके काबिल नहीं है, कि मैं जो कुछ देखने आया हूँ तो शायद आपकी परिताव से जमीन निकल जाए। तो नौशेरा उसे कहता है कि सोच समझ कर बात करो, और ये तुम क्या कह रही हो, वो मेरी मोहब्बत है, और तुम वो कह रहे हो कि वो मुझे काबिल नहीं है। और बात कुछ भी हो, लेकिन कभी भी दुआ के बारे में ऐसे अल्फाज मत निकालना। और जाफर मैं भूल जाऊंगा कि हमारी दोस्ती कितनी पुरानी है। तो जाफर कहता है कि मैं तुमको दुख नहीं देना चाहता, लेकिन आपको बताना मेरा फर्ज है, लेकिन आपको खुद इस पार्टी में जाना होगा, और जब तुम अपने आंखों से देखेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। तो नौशेरा जवाब में कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और दुआ एक इज्जतदार खाने से ताल्लुक रखती है, और वो एक इज्जत वाली लड़की है कि जिस तरह गार्ड्स के टकराने पर उसने शोर मचाया था, यहाँ तक कि थप्पड़ मारने के लिए भी तैयार थी। फिर ऐसे कैसे होता है कि वो इस पार्टी को ज्वाइन करे, और जाफर तुम्हें गलतफहमी हुई है और मुझे इस पार्टी में लेकर जाओ। तो नौशेरा गार्ड के साथ चला जाता है।
जाफर आखिरकार दुआ को ढूंढ लेता है। जब जाफर अपने घर वापस आ जाता है तो नौशेरा से कहता है कि दुआ मिल गई। तो नौशेरा कहता है कि मुझे मालूम था कि वो जरूर मिलेगी। जाफर से कहती है कि मुझे बताओ वो कैसी है। तो जाफर उसे कहता है कि वो लड़की आपके काबिल नहीं है, कि मैं जो कुछ देखने आया हूँ तो शायद आपकी परिताव से जमीन निकल जाए। तो नौशेरा उसे कहता है कि सोच समझ कर बात करो, और ये तुम क्या कह रही हो, वो मेरी मोहब्बत है और तुम वो कह रहे हो कि वो मुझे काबिल नहीं है। और बात कुछ भी हो, लेकिन कभी भी दुआ के बारे में ऐसे अल्फाज मत निकालना, और जाफर मैं भूल जाऊंगा कि हमारी दोस्ती कितनी पुरानी है। तो जाफर कहता है कि मैं तुमको दुख नहीं देना चाहता, लेकिन आपको बताना मेरा फर्ज है। लेकिन आपको खुद इस पार्टी में जाना होगा, और जब तुम अपने आंखों से देखेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। तो नौशेरा जवाब में कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और दुआ एक इज्जतदार खाने से ताल्लुक रखती है, और वो एक इज्जत वाली लड़की है कि जिस तरह गार्ड्स के टकराने पर उसने शोर मचाया था, यहाँ तक कि थप्पड़ मारने के लिए भी तैयार थी। फिर ऐसे कैसे होता है कि वो इस पार्टी को ज्वाइन करे, और जाफर तुम्हें गलतफहमी हुई है और मुझे इस पार्टी में लेकर जाओ। तो नौशेरा गार्ड के साथ चला जाता है। जाफर आखिरकार दुआ को ढूंढ लेता है। जब जाफर अपने घर वापस आ जाता है तो नौशेरा से कहता है कि दुआ मिल गई। तो नौशेरा कहता है कि मुझे मालूम था कि वो जरूर मिलेगी। जाफर से कहती है कि मुझे बताओ वो कैसी है। तो जाफर उसे कहता है कि वो लड़की आपके काबिल नहीं है, कि मैं जो कुछ देखने आया हूँ तो शायद आपकी परिताव से जमीन निकल जाए। तो नौशेरा उसे कहता है कि सोच समझ कर बात करो, और ये तुम क्या कह रही हो, वो मेरी मोहब्बत है और तुम वो कह रहे हो कि वो मुझे काबिल नहीं है। और बात कुछ भी हो, लेकिन कभी भी दुआ के बारे में ऐसे अल्फाज मत निकालना, और जाफर मैं भूल जाऊंगा कि हमारी दोस्ती कितनी पुरानी है। तो जाफर कहता है कि मैं तुमको दुख नहीं देना चाहता, लेकिन आपको बताना मेरा फर्ज है। लेकिन आपको खुद इस पार्टी में जाना होगा, और जब तुम अपने आंखों से देखेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। तो नौशेरा जवाब में कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और दुआ एक इज्जतदार खाने से ताल्लुक रखती है, और वो एक इज्जत वाली लड़की है कि जिस तरह गार्ड्स के टकराने पर उसने शोर मचाया था, यहाँ तक कि थप्पड़ मारने के लिए भी तैयार थी। फिर ऐसे कैसे होता है कि वो इस पार्टी को ज्वाइन करे, और जाफर तुम्हें गलतफहमी हुई है और मुझे इस पार्टी में लेकर जाओ। तो नौशेरा गार्ड के साथ चला जाता है। जाफर आखिरकार दुआ को ढूंढ लेता है। जब जाफर अपने घर वापस आ जाता है तो नौशेरा से कहता है कि दुआ मिल गई। तो नौशेरा कहता है कि मुझे मालूम था कि वो जरूर मिलेगी। जाफर से कहती है कि मुझे बताओ वो कैसी है। तो जाफर उसे कहता है कि वो लड़की आपके काबिल नहीं है, कि मैं जो कुछ देखने आया हूँ तो शायद आपकी परिताव से जमीन निकल जाए। तो नौशेरा उसे कहता है कि सोच समझ कर बात करो, और ये तुम क्या कह रही हो, वो मेरी मोहब्बत है और तुम वो कह रहे हो कि वो मुझे काबिल नहीं है। और बात कुछ भी हो, लेकिन कभी भी दुआ के बारे में ऐसे अल्फाज मत निकालना, और जाफर मैं भूल जाऊंगा कि हमारी दोस्ती कितनी पुरानी है। तो जाफर कहता है कि मैं तुमको दुख नहीं देना चाहता, लेकिन आपको बताना मेरा फर्ज है। लेकिन आपको खुद इस पार्टी में जाना होगा, और जब तुम अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। तो नौशेरा जवाब में कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और दुआ एक इज्जतदार खाने से ताल्लुक रखती है, और वो एक इज्जत वाली लड़की है कि जिस तरह गार्ड्स के टकराने पर उसने शोर मचाया था, यहाँ तक कि थप्पड़ मारने के लिए भी तैयार थी। फिर ऐसे कैसे होता है कि वो इस पार्टी को ज्वाइन करे, और जाफर तुम्हें गलतफहमी हुई है और मुझे इस पार्टी में लेकर जाओ। तो नौशेरा गार्ड के साथ चला जाता है। जाफर आखिरकार दुआ को ढूंढ लेता है। जब जाफर अपने घर वापस आ जाता है तो नौशेरा से कहता है कि दुआ मिल गई। तो नौशेरा कहता है कि मुझे मालूम था कि वो जरूर मिलेगी। जाफर से कहती है कि मुझे बताओ वो कैसी है। तो जाफर उसे कहता है कि वो लड़की आपके काबिल नहीं है, कि मैं जो कुछ देखने आया हूँ तो शायद आपकी परिताव से जमीन निकल जाए। तो नौशेरा उसे कहता है कि सोच समझ कर बात करो, और ये तुम क्या कह रही हो, वो मेरी मोहब्बत है और तुम वो कह रहे हो कि वो मुझे काबिल नहीं है। और बात कुछ भी हो, लेकिन कभी भी दुआ के बारे में ऐसे अल्फाज मत निकालना, और जाफर मैं भूल जाऊंगा कि हमारी दोस्ती कितनी पुरानी है। तो जाफर कहता है कि मैं तुमको दुख नहीं देना चाहता, लेकिन आपको बताना मेरा फर्ज है। लेकिन आपको खुद इस पार्टी में जाना होगा, और जब तुम अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच।
तो नौशेरा जवाब में कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता और दुआ एक इज्जतदार खाने से ताल्लुक रखती है और वो एक इज्जत वाली लड़की है कि जिस तरह गार्ड्स के टकराने पर उसने शोर मचाया था, यहाँ तक कि थप्पड़ मारने के लिए भी तैयार थी। फिर ऐसे कैसे होता है कि वो इस पार्टी को ज्वाइन करे और जहाँ पर तुम्हें गलतफहमी हुई है और मुझे इस पार्टी में लेकर जाओ। तो नौशेरा गार्ड के साथ चला जाता है। जाफर आखिरकार दुआ को ढूंढ लेता है। जब जाफर अपने घर वापस आ जाता है तो नौशेरा से कहता है कि दुआ मिल गई। तो नौशेरा कहता है कि मुझे मालूम था कि वो जरूर मिलेगी। जाफर से कहती है कि मुझे बताओ वो कैसी है। तो जाफर उसे कहता है कि वो लड़की आपके काबिल नहीं है, कि मैं जो कुछ देखने आया हूँ तो शायद आपकी परिताव से जमीन निकल जाए। तो नौशेरा उसे कहता है कि सोच समझ कर बात करो और ये तुम क्या कह रही हो, वो मेरी मोहब्बत है और तुम वो कह रहे हो कि वो मुझे काबिल नहीं है। और बात कुछ भी हो लेकिन कभी भी दुआ के बारे में ऐसे अल्फाज मत निकालना और जाफर मैं भूल जाऊंगा कि हमारी दोस्ती कितनी पुरानी है। तो जाफर कहता है कि मैं तुमको दुख नहीं देना चाहता लेकिन आपको बताना मेरा फर्ज है, लेकिन आपको खुद इस पार्टी में जाना होगा और जब तुम अपने आंखों से देखेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। तो नौशेरा जवाब में कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता और दुआ एक इज्जतदार खाने से ताल्लुक रखती है और वो एक इज्जत वाली लड़की है कि जिस तरह गार्ड्स के टकराने पर उसने शोर मचाया था, यहाँ तक कि थप्पड़ मारने के लिए भी तैयार थी। फिर ऐसे कैसे होता है कि वो इस पार्टी को ज्वाइन करे और जहाँ पर तुम्हें गलतफहमी हुई है और मुझे इस पार्टी में लेकर जाओ। तो नौशेरा गार्ड के साथ चला जाता है। जाफर आखिरकार दुआ को ढूंढ लेता है। जब जाफर अपने घर वापस आ जाता है तो नौशेरा से कहता है कि दुआ मिल गई। तो नौशेरा कहता है कि मुझे मालूम था कि वो जरूर मिलेगी। जाफर से कहती है कि मुझे बताओ वो कैसी है। तो जाफर उसे कहता है कि वो लड़की आपके काबिल नहीं है, कि मैं जो कुछ देखने आया हूँ तो शायद आपकी परिताव से जमीन निकल जाए। तो नौशेरा उसे कहता है कि सोच समझ कर बात करो और ये तुम क्या कह रही हो, वो मेरी मोहब्बत है और तुम वो कह रहे हो कि वो मुझे काबिल नहीं है। और बात कुछ भी हो लेकिन कभी भी दुआ के बारे में ऐसे अल्फाज मत निकालना और जाफर मैं भूल जाऊंगा कि हमारी दोस्ती कितनी पुरानी है। तो जाफर कहता है कि मैं तुमको दुख नहीं देना चाहता लेकिन आपको बताना मेरा फर्ज है, लेकिन आपको खुद इस पार्टी में जाना होगा और जब तुम अपने आंखों से देखेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। तो नौशेरा जवाब में कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता और दुआ एक इज्जतदार खाने से ताल्लुक रखती है और वो एक इज्जत वाली लड़की है कि जिस तरह गार्ड्स के टकराने पर उसने शोर मचाया था, यहाँ तक कि थप्पड़ मारने के लिए भी तैयार थी। फिर ऐसे कैसे होता है कि वो इस पार्टी को ज्वाइन करे और जहाँ पर तुम्हें गलतफहमी हुई है और मुझे इस पार्टी में लेकर जाओ। तो नौशेरा गार्ड के साथ चला जाता है। जाफर आखिरकार दुआ को ढूंढ लेता है। जब जाफर अपने घर वापस आ जाता है तो नौशेरा से कहता है कि दुआ मिल गई। तो नौशेरा कहता है कि मुझे मालूम था कि वो जरूर मिलेगी। जाफर से कहती है कि मुझे बताओ वो कैसी है। तो जाफर उसे कहता है कि वो लड़की आपके काबिल नहीं है, कि मैं जो कुछ देखने आया हूँ तो शायद आपकी परिताव से जमीन निकल जाए। तो नौशेरा उसे कहता है कि सोच समझ कर बात करो और ये तुम क्या कह रही हो, वो मेरी मोहब्बत है और तुम वो कह रहे हो कि वो मुझे काबिल नहीं है। और बात कुछ भी हो लेकिन कभी भी दुआ के बारे में ऐसे अल्फाज मत निकालना और जाफर मैं भूल जाऊंगा कि हमारी दोस्ती कितनी पुरानी है। तो जाफर कहता है कि मैं तुमको दुख नहीं देना चाहता लेकिन आपको बताना मेरा फर्ज है, लेकिन आपको खुद इस पार्टी में जाना होगा और जब तुम अपने आंखों से देखेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। तो नौशेरा जवाब में कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता और दुआ एक इज्जतदार खाने से ताल्लुक रखती है और वो एक इज्जत वाली लड़की है कि जिस तरह गार्ड्स के टकराने पर उसने शोर मचाया था, यहाँ तक कि थप्पड़ मारने के लिए भी तैयार थी। फिर ऐसे कैसे होता है कि वो इस पार्टी को ज्वाइन करे और जहाँ पर तुम्हें गलतफहमी हुई है और मुझे इस पार्टी में लेकर जाओ। तो नौशेरा गार्ड के साथ चला जाता है। जाफर आखिरकार दुआ को ढूंढ लेता है। जब जाफर अपने घर वापस आ जाता है तो नौशेरा से कहता है कि दुआ मिल गई। तो नौशेरा कहता है कि मुझे मालूम था कि वो जरूर मिलेगी। जाफर से कहती है कि मुझे बताओ वो कैसी है। तो जाफर उसे कहता है कि वो लड़की आपके काबिल नहीं है, कि मैं जो कुछ देखने आया हूँ तो शायद आपकी परिताव से जमीन निकल जाए। तो नौशेरा उसे कहता है कि सोच समझ कर बात करो और ये तुम क्या कह रही हो, वो मेरी मोहब्बत है और तुम वो कह रहे हो
हो कि वो मुझे काबिल नहीं है, और बात कुछ भी हो, लेकिन कभी भी दुआ के बारे में ऐसे अल्फाज मत निकालना। और जाफर मैं भूल जाऊंगा कि हमारी दोस्ती कितनी पुरानी है। तो जाफर कहता है कि मैं तुमको दुख नहीं देना चाहता, लेकिन आपको बताना मेरा फर्ज है, लेकिन आपको खुद इस पार्टी में जाना होगा, और जब तुम अपने आंखों से देखेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। तो नौशेरा जवाब में कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और दुआ एक इज्जतदार खाने से ताल्लुक रखती है, और वो एक इज्जत वाली लड़की है कि जिस तरह गार्ड्स के टकराने पर उसने शोर मचाया था, यहाँ तक कि थप्पड़ मारने के लिए भी तैयार थी। फिर ऐसे कैसे होता है कि वो इस पार्टी को ज्वाइन करे, और जहाँ पर तुम्हें गलतफहमी हुई है और मुझे इस पार्टी में लेकर जाओ। तो नौशेरा गार्ड के साथ चला जाता है। जाफर आखिरकार दुआ को ढूंढ लेता है। जब जाफर अपने घर वापस आ जाता है तो नौशेरा से कहता है कि दुआ मिल गई। तो नौशेरा कहता है कि मुझे मालूम था कि वो जरूर मिलेगी। जाफर से कहती है कि मुझे बताओ वो कैसी है। तो जाफर उसे कहता है कि वो लड़की आपके काबिल नहीं है, कि मैं जो कुछ देखने आया हूँ तो शायद आपकी परिताव से जमीन निकल जाए। तो नौशेरा उसे कहता है कि सोच समझ कर बात करो, और ये तुम क्या कह रही हो, वो मेरी मोहब्बत है, और तुम वो कह रहे हो कि वो मुझे काबिल नहीं है। और बात कुछ भी हो, लेकिन कभी भी दुआ के बारे में ऐसे अल्फाज मत निकालना। और जाफर मैं भूल जाऊंगा कि हमारी दोस्ती कितनी पुरानी है। तो जाफर कहता है कि मैं तुमको दुख नहीं देना चाहता, लेकिन आपको बताना मेरा फर्ज है, लेकिन आपको खुद इस पार्टी में जाना होगा, और जब तुम अपने आंखों से देखेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। तो नौशेरा जवाब में कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और दुआ एक इज्जतदार खाने से ताल्लुक रखती है, और वो एक इज्जत वाली लड़की है कि जिस तरह गार्ड्स के टकराने पर उसने शोर मचाया था, यहाँ तक कि थप्पड़ मारने के लिए भी तैयार थी। फिर ऐसे कैसे होता है कि वो इस पार्टी को ज्वाइन करे, और जहाँ पर तुम्हें गलतफहमी हुई है और मुझे इस पार्टी में लेकर जाओ। तो नौशेरा गार्ड के साथ चला जाता है। जाफर आखिरकार दुआ को ढूंढ लेता है। जब जाफर अपने घर वापस आ जाता है तो नौशेरा से कहता है कि दुआ मिल गई। तो नौशेरा कहता है कि मुझे मालूम था कि वो जरूर मिलेगी। जाफर से कहती है कि मुझे बताओ वो कैसी है। तो जाफर उसे कहता है कि वो लड़की आपके काबिल नहीं है, कि मैं जो कुछ देखने आया हूँ तो शायद आपके परिताव से जमीन निकल जाए। तो नौशेरा उसे कहता है कि सोच समझ कर बात करो, और ये तुम क्या कह रही हो, वो मेरी मोहब्बत है, और तुम वो कह रहे हो कि वो मुझे काबिल नहीं है। और बात कुछ भी हो, लेकिन कभी भी दुआ के बारे में ऐसे अल्फाज मत निकालना। और जाफर मैं भूल जाऊंगा कि हमारी दोस्ती कितनी पुरानी है। तो जाफर कहता है कि मैं तुमको दुख नहीं देना चाहता, लेकिन आपको बताना मेरा फर्ज है, लेकिन आपको खुद इस पार्टी में जाना होगा, और जब तुम अपने आंखों से देखेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। तो नौशेरा जवाब में कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और दुआ एक इज्जतदार खाने से ताल्लुक रखती है, और वो एक इज्जत वाली लड़की है कि जिस तरह गार्ड्स के टकराने पर उसने शोर मचाया था, यहाँ तक कि थप्पड़ मारने के लिए भी तैयार थी। फिर ऐसे कैसे होता है कि वो इस पार्टी को ज्वाइन करे, और जहाँ पर तुम्हें गलतफहमी हुई है और मुझे इस पार्टी में लेकर जाओ। तो नौशेरा गार्ड के साथ चला जाता है। जाफर आखिरकार दुआ को ढूंढ लेता है। जब जाफर अपने घर वापस आ जाता है तो नौशेरा से कहता है कि दुआ मिल गई। तो नौशेरा कहता है कि मुझे मालूम था कि वो जरूर मिलेगी। जाफर से कहती है कि मुझे बताओ वो कैसी है। तो जाफर उसे कहता है कि वो लड़की आपके काबिल नहीं है, कि मैं जो कुछ देखने आया हूँ तो शायद आपके परिताव से जमीन निकल जाए। तो नौशेरा उसे कहता है कि सोच समझ कर बात करो, और ये तुम क्या कह रही हो, वो मेरी मोहब्बत है, और तुम वो कह रहे हो कि वो मुझे काबिल नहीं है। और बात कुछ भी हो, लेकिन कभी भी दुआ के बारे में ऐसे अल्फाज मत निकालना। और जाफर मैं भूल जाऊंगा कि हमारी दोस्ती कितनी पुरानी है। तो जाफर कहता है कि मैं तुमको दुख नहीं देना चाहता, लेकिन आपको बताना मेरा फर्ज है, लेकिन आपको खुद इस पार्टी में जाना होगा, और जब तुम अपने आंखों से देखेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। तो नौशेरा जवाब में कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और दुआ एक इज्जतदार खाने से ताल्लुक रखती है, और वो एक इज्जत वाली लड़की है कि जिस तरह गार्ड्स के टकराने पर उसने शोर मचाया था, यहाँ तक कि थप्पड़ मारने के लिए भी तैयार थी। फिर ऐसे कैसे होता है कि वो इस पार्टी को ज्वाइन करे, और जहाँ पर तुम्हें गलतफहमी हुई है और मुझे इस पार्टी में लेकर जाओ। तो नौशेरा गार्ड के साथ चला जाता है।
जाफर आखिरकार दुआ को ढूंढ लेता है। जब जाफर अपने घर वापस आ जाता है तो नौशेरा से कहता है कि दुआ मिल गई। तो नौशेरा कहता है कि मुझे मालूम था कि वो जरूर मिलेगी। जाफर से कहती है कि मुझे बताओ वो कैसी है। तो जाफर उसे कहता है कि वो लड़की आपके काबिल नहीं है, कि मैं जो कुछ देखने आया हूँ तो शायद आपकी पलिताओं से जमीन निकल जाए। तो नौशेरा उसे कहता है कि सोच समझ कर बात करो, और ये तुम क्या कह रही हो, वो मेरी मोहब्बत है, और तुम वो कह रहे हो कि वो मुझे काबिल नहीं है। और बात कुछ भी हो, लेकिन कभी भी दुआ के बारे में ऐसे अल्फाज मत निकालना। और जाफर मैं भूल जाऊंगा कि हमारी दोस्ती कितनी पुरानी है। तो जाफर कहता है कि मैं तुमको दुख नहीं देना चाहता, लेकिन आपको बताना मेरा फर्ज है। लेकिन आपको खुद इस पार्टी में जाना होगा, और जब तुम अपने आंखों से देखेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। तो नौशेरा जवाब में कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और दुआ एक इज्जतदार खाने से ताल्लुक रखती है, और वो एक इज्जत वाली लड़की है कि जिस तरह गार्ड्स के टकराने पर उसने शोर मचाया था, यहाँ तक कि थप्पड़ मारने के लिए भी तैयार थी। फिर ऐसे कैसे होता है कि वो इस पार्टी को ज्वाइन करे। और जाफर तुम्हें गलतफहमी हुई है और मुझे इस पार्टी में लेकर जाओ। तो नौशेरा गार्ड के साथ चला जाता है। जाफर आखिरकार दुआ को ढूंढ लेता है। जब जाफर अपने घर वापस आ जाता है तो नौशेरा से कहता है कि दुआ मिल गई। तो नौशेरा कहता है कि मुझे मालूम था कि वो जरूर मिलेगी। जाफर से कहती है कि मुझे बताओ वो कैसी है। तो जाफर उसे कहता है कि वो लड़की आपके काबिल नहीं है, कि मैं जो कुछ देखने आया हूँ तो शायद आपकी पलिताओं से जमीन निकल जाए। तो नौशेरा उसे कहता है कि सोच समझ कर बात करो, और ये तुम क्या कह रही हो, वो मेरी मोहब्बत है, और तुम वो कह रहे हो कि वो मुझे काबिल नहीं है। और बात कुछ भी हो, लेकिन कभी भी दुआ के बारे में ऐसे अल्फाज मत निकालना। और जाफर मैं भूल जाऊंगा कि हमारी दोस्ती कितनी पुरानी है। तो जाफर कहता है कि मैं तुमको दुख नहीं देना चाहता, लेकिन आपको बताना मेरा फर्ज है। लेकिन आपको खुद इस पार्टी में जाना होगा, और जब तुम अपने आंखों से देखेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। तो नौशेरा जवाब में कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और दुआ एक इज्जतदार खाने से ताल्लुक रखती है, और वो एक इज्जत वाली लड़की है कि जिस तरह गार्ड्स के टकराने पर उसने शोर मचाया था, यहाँ तक कि थप्पड़ मारने के लिए भी तैयार थी। फिर ऐसे कैसे होता है कि वो इस पार्टी को ज्वाइन करे। और जाफर तुम्हें गलतफहमी हुई है और मुझे इस पार्टी में लेकर जाओ। तो नौशेरा गार्ड के साथ चला जाता है। जाफर आखिरकार दुआ को ढूंढ लेता है। जब जाफर अपने घर वापस आ जाता है तो नौशेरा से कहता है कि दुआ मिल गई। तो नौशेरा कहता है कि मुझे मालूम था कि वो जरूर मिलेगी। जाफर से कहती है कि मुझे बताओ वो कैसी है। तो जाफर उसे कहता है कि वो लड़की आपके काबिल नहीं है, कि मैं जो कुछ देखने आया हूँ तो शायद आपकी पलिताओं से जमीन निकल जाए। तो नौशेरा उसे कहता है कि सोच समझ कर बात करो, और ये तुम क्या कह रही हो, वो मेरी मोहब्बत है, और तुम वो कह रहे हो कि वो मुझे काबिल नहीं है। और बात कुछ भी हो, लेकिन कभी भी दुआ के बारे में ऐसे अल्फाज मत निकालना। और जाफर मैं भूल जाऊंगा कि हमारी दोस्ती कितनी पुरानी है। तो जाफर कहता है कि मैं तुमको दुख